पर सेकेंड। हाँ, जब भी हमें कोई भी कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर, उसको कहीं भी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल, तो ऐसा ही सिस्टम में हम मीटर पर सेकंड में चलते हैं, राइट। तो उसको हमें क्या करना होता है कि इससे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हो गया ज्वाइनिंग, तो अपन उधर ही स्टार्ट करते हैं। मोशन से अपन चलते हैं शुरू में। तो आप देखिए स्लाइड दिख रही कि नहीं दिख रही, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस पे कॉल कर लेना वापस, ठीक है। ओके, हाँ अर्णव कैलकुलेट कर लिया उसको। हाँ, वो 5/18 होगा, इससे बच जाएगा। अभी आएगा, आप आगे करेंगे तो बीच में मैंने पूछ लिया था। अब अपन चलते हैं वापस स्टार्टिंग से, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, तो हमने बात की थी मोशन की। तो हाउ वी कैन डिफाइन मोशन, और हाउ वी कैन से कि एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन। इसके लिए वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट, नंबर 1। So what is the definition of rest? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. For example, you are sitting in a running train. You are sitting in a running train, and your co-passenger is also with you, and one person is standing on the platform. Now train is running. If suppose this is Arnav and this is your friend, and this is your father is standing at the platform. Now for Arnav, this is your reference point, and your friend is sitting near to you. So this surrounding become your train. So inside the train, if you watching each other, so both of you are in rest. But a person standing outside the train, if he looks you, both of you, you and your friend, both are in motion. So we can say to define an object is rest and motion, we need is reference point or surrounding. Then definition is on screen also. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with passes time. Now examples: a person, a chair, a person sitting on a bench, your chair, table, etc. This is your rest. And now we come to the next term, motion. So how you can define motion? An object is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding. In the case of rest, position of the object does not change. But in the case of motion, the position of the object must be continuously changed with passes time. Okay. So example: fan, motion of a plane, motion of a car, etc. And these two terms, motion and rest, are relative terms. If an object is in one situation, it is in rest, and the same time it may be in motion. That I explain you with this example. Okay, your friend sitting with become your co-passenger in the train. So that friend is in rest position, but your father or person is standing outside the train, it is in motion. So these two terms are correlated to each other. Okay, so this is the relative terms. I give you can read this slide. A passenger sitting in a moving train is at rest with respect to the fellow passenger, but it is in motion with respect to person outside the train. Thus, you can say these two terms are correlated to each other. So any doubt up to here, rest and motion? I hope it is clear to everyone. Yes. Okay. Now we come to the next types of motions according to the directions or dimensions. It's a 3 types of motion up to your level: one dimensional motion, two dimensional motion, and
three-dimensional motion. If a person moving along a straight line only in one direction, is not in the two directions, only in one direction, then we can say the motion of the person or train or object is in the one-dimensional motion. Okay, so the car on the track, train on the track, these are the example of the one-dimensional motion. And two-dimensional motion, you can say if a body moving along the two direction, x-axis along y-axis, it may be along y and z-axis, then motion is said to be two-dimensional motion. For example, motion of the fan. It is a circular motion with another term we will discuss in the next topic. But here our aim is to the it is one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional. So it move along two axes, circular motion along x or y. So it is a two-dimensional motion. And then third term is three-dimensional motion. Motion of a plane. Plane can move along x direction also, y also, z. It can move upward side also. It can move downward side also. So its motion is called three-dimensional motion. So you can see there is a screen also one-dimensional motion. I have mentioned the definition. The motion of an object is said to be one-dimensional if only one of the three considering changes. Here, object moving along a straight line. Example, same motion of the train moving along a straight line. Motion of a freely falling body. It's also a one-dimensional motion. If you drop a ball from your roof, then it goes downward direction. This is just like a pen. I fall it in the downward direction. It is a one-dimensional motion. But if you throw a stone or any object, make some angle with it like that, then it is a two-dimensional motion. And the motion and trajectory of this particle become parabolic. It's not a straight line. In this situation, if you throw a particle, make some angle with horizontal, then it's two direction, along x and along this. That due to gravitational force, it's called off. So it is a two-dimensional motion. But if you straightly drop a object from here to here, then this motion is your one-dimensional motion. It's clear? Any doubt? Yes. One-dimensional and two-dimensional? No. Motion of a plane, three-dimensional. Motion of the kite flying in the sky, it's three-dimensional. Motion of the smoke, it's three-dimensional. I hope this is clear to both, all of you. One-dimensional motion, two-dimensional Yes. motion, and three-dimensional motion. Any doubt? Anybody have any doubt? Okay, so now we come to the next one. Any doubt? So next term is distance, displacement. We will discuss now these another two terms, distance and displacement. Can you tell me what do you understand by the term distance? Anybody? My aim is to define now term distance. And another term is displacement. One term is distance, another term is displacement. Yes? Distance and displacement. Then The actual path of length traveled by a moving object or a body. how we can define distance? Say, for example, a person moving from the place A and it will move at the place B. The length of between this A and B, length, I am using the term length, not distance. Say 10 kilometer. Right? Now at 10 a.m. you start your motion from A. After some time you reach at the point B. So what is the actual length of the path covered by a person is known as distance.
This can be understood by another example. Say like that. Start from A, reaches at B along a straight line. Now, I then B to C like that. This is in one direction, then this is in another direction. It reaches here, B to C, then A to C. This is your 10 kilometer. हेलो, Hello. लिख रहा है बोर्ड का लिखा हुआ? Yes. Yes, sir. Let's say this is 12 kilometer. Then it's again say 12 kilometer. Or maybe assume again 10 first in the case, and then this is 12 kilometer. So you start your motion from A, reaches to D, and then reaches to C, then C to D, and then again D to A. So what is the distance covered by person? Total distance. A to B is 10, then B to C is 12, C to D is 10, and D to A is 12. So add all these values. What you will get? 10, 10, 20, and 24. This is total 44 kilometers. So our distance covered is 44 kilometer. But if we calculate the displacement, so how we can define displacement? Displacement definition is the shortest length between initial position and final position. Say your initial position be A and final position is B. You can reach this B at so many ways. One way moving like that, another way moving click 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 like that, and direct way this A to B. But in all these cases, whatever be the shortest length, that is displacement. So shortest length between A and B is called displacement, and actual length is called distance. So what is the displacement in our this previous case? 10 kilometer, then 12 kilometer, then 10 kilometer, then 12 kilometer. What is initial position? A. What is final position? A. तो बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड हो गया हमने 44 किलोमीटर. अब बताओ मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन दिस केस? 0. 0. करेक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड. इट इज 0. Yes, sir. Displacement is 0. Because initial position and final position both are remain same. तुम करते रहो, बोलो मत, तुम पढ़ाई में ध्यान रखो. Now these are the notes you can see. Motion rest. I already told you. An object is said to be at rest if it does not change its position with this. तो ये हो गया अपना rest, motion, correlated term, one dimensional motion, three dimensional motion. मैं आपको मेल पे भेज दूंगा. You can copy it. Then distance. Distance को हमने डिस्कस किया अभी. क्या बताया? The length of the actual path traveled by a moving body, irrespective of the direction. कोई भी डायरेक्शन, कुछ भी नहीं, जो एक्चुअल लेंथ है पाथ कवर्ड, दैट इज योर डिस्टेंस. If the length of the actual traveled by body between initial position and final position, but displacement is the shortest distance, always remain the, it's not actual, it is shortest length, shortest distance. किन दो पॉइंट पे? Between initial and final position. Now we'll discuss units.
बताइए मुझे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बताओ मीटर पर सेकेंड. Oh, very good. I'm asking unit of distance. Meter per second is the unit of speed. Speed. Meter. Meter. And unit as a unit of displacement? Yes, Meter. Palak? As a unit of displacement? बोलो अनमोल. Meter. Meter per second is the unit of speed, velocity. मैं displacement पूछ रहा हूँ. Meter. हाँ, okay. Unit of SI unit of distance and displacement is meter. Now, all of you are familiar with scalar and vector quantity? Anyone? कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? In scalar quantity, no direction is required, but in vector quantity, direction is required. Yes, another? Anyone? Anmol? Scalar quantity is only expressed in like magnitude, and vector is expressed in magnitude and direction. Yes, बताओ. Palak? But you are familiar with this term, scalar quantity and vector quantity? Yes, sir. बताइए. So actually, the vector quantity is that it is unidirectional, and the scalar quantity is bidirectional. Scalar quantity is Bidirectional. bidirectional. What is the meaning of this? Bidirectional means? Actually, it's No, it is not correct. देखिए, to define to give given quantity is scalar or vector, we need two terms. Number one, magnitude of the quantity. Another is direction. So to represent any physical quantity, maybe distance, displacement, speed, velocity, acceleration, whatever be, if we need only magnitude, we are not bothered about the direction. This is in the case of distance. I told you the distance means length of the actual path covered. Now this is your path covered. Our aim is to measure length of the actual path covered. Is A, B, C, D, E. If you measure this distance separately, this distance separately, this distance separately, this distance separately, it don't require any direction. You can measure from this side also, or you can measure from this side also. In both the case situation, we get the same result for in the case of distance. So a physical quantity to represent, we need only magnitude, then it is called scalar quantity. But if we need both magnitude as well as direction, then it is called a vector quantity. In the case of displacement, I told you it is the shortest length between initial position and final position. Now here we specified the direction. If we have to measure these 2 points distance between and in shortest length, so therefore displacement is a vector quantity. Why I explain these two terms? Because in your syllabus, distance and displacement, examiner can ask distinguish these two terms, distance and displacement. So when examiner asks to distinguish these two terms, distance and displacement, so you need to first define definition. First definition. After that, scalar or vector. Then is unit. Now tell me, ये पलक अनम्यूट बार बार कर देते हो. Now आप मुझे बताओ, distance can be negative. तीनों जने No. चारों जने बताओ. no, sir. सकता है. Distance बताओ cannot be ना पलक. Distance cannot be Can negative. distance be Distance negative? cannot be negative. Cannot be negative. It may be 0.
ये distance 0. No, actually it will और not. ये जीरो होगा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव. तो फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन, first difference is definition of distance and displacement. Second difference, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. And third difference is distance always positive and displacement may be positive, may be negative and zero. और चौथा डिस्प्लेस बताओ, तुमने तो पढ़ा रखा है. Sir, distance is always greater than or equal to displacement, and displacement is always नहीं. देखो Sir, distance is अभी हमने always बिल्कुल करेक्ट, उसको आप अटक रहे. हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन टू डिस्टेंस. इससे ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्चुअल लेंथ जैसे हमारा जब वो बना, यहां से गए आप ए से बी और बी से सी वापस स्ट्रेट लाइन ही जा रहे हैं. तो इन दिस केस से दिस इज 10 किलोमीटर एंड दिस इज आल्सो 10 किलोमीटर. आप लोगों को बोर्ड का लिखा हुआ दिख रहा है Yes. अर्णव और पलक? क्योंकि प्रॉब्लम मुझे यही हो रही है कि आपको बोर्ड का दिखता है कि नहीं दिखता. Yes, no, actually it's A visible. से B 10 किलोमीटर, B to C 10 किलोमीटर. क्योंकि ये विजिबल होगा तो हम मैथमेटिक्स की क्लास कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड ज्यादा चाहिए. नोट्स यहाँ पे तो चलो नोट्स आ जाएंगे. दिख रहा है 10 किलोमीटर लिखा हुआ और दिस इज 10. तो इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस इज आल्सो 20 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 20 किलोमीटर. बट अब आपने क्या करा, C से वापस A पे आ गए, तो डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर but displacement is zero now. Okay, so you can see the slide also. दिख रही है स्लाइड? Yes. मैं इसको बड़ा कर देता हूं और इसको पढ़ लो. कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो. ये देखिए डिस्टेंस हो गया, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इज रेस्पेक्ट टू of the direction in which body moves. This is the another definition. It is the length of actual path traveled by body between its initial and final position. Distance is a scalar quantity. Reason because it has only magnitude, no direction. Unit of distance is meter. Distance always positive, zero. It means distance never be negative. Now displacement, similarly, CGS unit is centimeter. Positive displacement, if the final position always on the right hand side of the motion, so displacement is positive, or in other words we can say always in forward direction, then come back reverse, but still finally is at the right hand side of our motion. Suppose we start from here, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, यहाँ आके रह गए, लेकिन finally तो right hand side है, तो displacement positive. लेकिन if you come back, is the left hand side of A, and this is your final destination, so now displacement is negative. तो ये आपका नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव. ऑन द ग्राफ यू कैन आल्सो मेक इट. ग्राफ पे भी हम इसको बना सकते हैं. दिस इज योर सपोज लीनियर ग्राफ एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्सिस. सो ये पॉजिटिव है, तो इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फाइनल गो एंड फाइनली टू कम हियर. It is on right hand side of origin. This is this quadrant. So displacement is positive. But your final destination be any somewhere of left hand side of origin. So in this situation,
displacement is negative. And finally we come to the initial point, then displacement is 0. For example, motion of a particle along a circle. अब आप सर्कल पे चल रहे हैं ऐसे गोल में, अब ये यहाँ है। गुड क्वेश्चन, तीनों चारों ध्यान दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास में वापस आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कि सपोज ए से बी, ये आपका डायमीटर है, मान लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। नाउ पार्टिकल स्टार्ट इट मोशन, या बॉडी स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम ए एंड मूव अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, reaches from by this path, not along this path, on the circumference of the circle and come back to the point A. अब मुझे सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कि in this situation what is the value of distance and what is the value of displacement. कर सकते हो, बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा इसको। I repeat it again my question, ध्यान से सुनो कि हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडियस, मैंने बताया आपको डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। ए से आपने मोशन स्टार्ट करा और अलोंग दी सर्कम पेरिफेरी ऑफ दी सर्कल पे घूम रहे, आप यूं नहीं जा रहे, आप इससे जा रहे हैं ए से बी और वापस ए पे आ गए, तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ भाई, सब लोग बताओ अपना अपना आंसर। Distance is 88/7 and displacement is 0. एक मिनट, डिस्टेंस कितना? 88/7 है? 88/7 सुना ही नहीं आया ढंग से, या टाइप करके बेसिक 88/7 18/7 88 58 कैसे कैलकुलेट करा? 88 यस, अब आगे 2 pi 88 हाँ, कैसे कैलकुलेट करा आपने? यस पलक, आप भी बताओ इसको कैलकुलेट करके। Sir, I calculated by formula 2 pi r, so it came 88 मतलब upon आता है, गुड, वेरी गुड, बस यही मैं पूछना and देखना चाहता था। displacement is आपको- 0. लेकिन हाँ बोलो। सर इसमें डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, सर रेडियस हियर जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड होगी वो सर्कल का पाथ है, तो आप लोगों ने सही बताया, क्या होगा? 2 पाई r, 2 into 22/7 एंड डायमीटर 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 2 जो 40, 88/7। नाउ क्या यूनिट बताओ, मीटर आएगा, किलोमीटर, सेंटीमीटर तो बोला ही नहीं आप लोगों ने किसी ने भी। बिना यूनिट के फिजिक्स में आधा नंबर कट जाएगा, बताइए। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसको अब इस क्वेश्चन को, ये तो सिंपल था, अब मुझे बताइएगा, अब मैं इसको थोड़ा टिपिकल कर रहा हूं कि अब आप ए से बी गए इस सरकमफ्रेंस पर, ए से बी तो कहां आ रहे हो आप? सरकमफ्रेंस, और बी से ए थ्रू डायमीटर आ रहे हो। पहले तो हम आए थे वापस यहां से, अब के हम ए से बी तो यहाँ पे गए और बी से ए हम यहाँ आए हैं, तो टेल मी नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बताइए। अब ए से बी जा रहे हैं और बी से ए आ रहे हैं, बोलो 44/7 कैसे कर रहे हो, वो भी बोलते जाओ फटाफट पूरे स्टेप्स। pi r हाँ for बताइए। using the formula pi r. पाई आर, क्योंकि ये आधा हो जाएगा तो वो तो हो गया पाई आर प्लस Plus डायमीटर, 4 पाई आर प्लस डायमीटर ऑफ द सर्किल, इन दोनों का सम तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड। सर 44/7 तो 82/7 पाई हो गया 22/7 into 2 प्लस कितना था 4, तो 44/7, तो इनकम्प्लीट आंसर हो बेटा, ए टू बी तक ही हुआ, प्लस 4 एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करें। एंड डिस्प्लेसमेंट
Zero. Displacement? No, displacement is Displacement is 4 centimeter. Displacement. मेरा displacement 4 क्वेश्चन था, centimeter. देखो वापस सुनो आप लोगों ने, ए से बी, अब हम इस सेमी सर्कल पे गए हैं, ये बी पॉइंट है, और बी से इस तरीके से वापस आ गए, कहां पे? अगेन ए। तो क्या होगा? 0. 0. हाँ, 0. अब ये खत्म होने Zero. वाला है, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव रिमूव द 40 मिनट्स टाइम लिमिट ऑन योर ग्रुप मीटिंग। ठीक है, वापस चालू करें, कोई प्रॉब्लम बोलो, बंद कर रहा है ये तो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्लियर हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, Yes, sir. उससे आप रेस्ट की डेफिनेशन पढ़िए, नोट्स में शाम को मेल कर दूंगा। रेस्ट की डेफिनेशन पढ़िए, मोशन की डेफिनेशन पढ़िए, फिर रेस्ट एंड मोशन को रिलेटेड टर्म ये पढ़िए, इनके एग्जांपल, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 4 क्लास का हम एक ही साथ हो गया देन, क्योंकि तीनों सबको आपको आता है। फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी एसआई यूनिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी बुक में और भी दिए होंगे, वो करिएगा। ये हो गए यहाँ तक खत्म। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, अभी कंटिन्यू चल रहा है, वैसे मेरा एरर आ गया था, ठीक है, जब तक चल रहा है इसको करें कंटिन्यू। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म मोशन, एंड कल फिर मैथ की क्लास लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग बताइए मुझे, क्या समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म? क्या हो करते रहो, छोड़ दिया आप लोगों को क्या? बताओ अनमोल, यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? और मैं तुम्हें कहा था When an object moves, हाँ, कोई बताएगा? Yes, जो sir. भी जितना भी आपको पता है, किताब से देख के नहीं Actual- बताना, अपने माइंड से बताना है। फिर बाकी तो स्लाइड दे ही रहा हूँ मैं। when an object moves with the So same the speed, uniform motion called is uniform motion. that the actual distance traveled by an object in the equal interval of time. ओके, यस अर्णव, आप भी बताओ। The motion in which the object travels the distance with यस एग्जैक्ट वैसे चलो। When short and sweet we can say when an object covered equal distance in equal interval of time. Equal time. Remember this, time interval equal लेना है तो पता चलेगा। पर्सन्स क्या करते हैं, टाइम इंटरवल अलग अलग ले लिया तो फिर नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और इफ अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल, फॉर एग्जांपल आप अजमेर से जयपुर जा रहे हैं, तो अजमेर से जयपुर से हम जाते हैं, या आप उदयपुर से अपनी दिल्ली जा रहे हैं, तो कभी कार तेज चलाते हो, कभी धीरे चलाते हो, तो आप क्या करोगे, हर 1 घंटे बाद अगर आप डिस्टेंस कवर नोट करोगे तो वो क्या आती है, क्या हाँ तो क्या होगा, अलग अलग आएगा। ये हो गया डिस्चार्ज। स्विच ऑन करोगे कभी भी, पावर ही ऑन नहीं करना। तो हम वहां जा रहे हैं तो अलग अलग स्पीड से चलते हैं, लेकिन जब हम हाईवे पे चलते हैं तो हम एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाते हैं। तो हर हाफ एन आवर पे अगर आपने टाइम देखा, डिस्टेंस कवर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वो मोशन हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म। तो व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल में भी, कितना ही छोटा टाइम लो, हम 2 मिनट ले लिया, 1 सेकंड ले लिया, क्योंकि जब हेवीली बॉडीज होता है तो वहां टाइम लिमिट कम भी कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने लिख दिया, मैंने एग्जांपल, ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो हर 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर ही जा रही है, दूसरे 1 घंटे में भी 90 ही जा रही है, तो वो यूनिफॉर्म। जैसे ए से बी गए, 1 घंटे में डिस्टेंस 5 किलोमीटर चली, इसका एक डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। फिर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो बी से सी जाएंगे, डी जाएंगे, तो हर आवर्स में उसने डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करे हुए हैं। तो अगर वो सब बार 555 किलोमीटर आ रहा है, एनसीईआरटी में होगा, आप देखिएगा, तो
वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन सेकंड केस में वो अलग अलग आ रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास अभी, इसको देखना नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे वापस। नहीं, सिंपल सा है, आपको हर टाइम के इंटरवल के लिए डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता देता हूं मैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए आप ये ए पर हैं, अब आप बी पे जा रहे हैं, तो इधर ही सही रहता है, इधर पे आ जाता हूं, इसलिए कह रहा था यहाँ ये सी आ गया, ये डी आ गया। ये तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को तो आता है। अब ये आपका 10 किलोमीटर और यहां से यहां तक है 25 किलोमीटर। A to B is 10 kilometer and A to C is 25 kilometer. So what is B to C? तो हमें क्या करना पड़ेगा? BC is equal to AC minus ऐसे निकालना है। तो वो सम आपका ये दिया हुआ है। 15 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं अभी मैं। तो AC is 25, AB is 10. So this 25 minus 10 gives you BC. So BC is equal to what is AC? 25. इसको बंद कर। तो 25 minus 10 कितना हो जाएगा ये? 15। तो इसी प्रकार से आप लोगों की जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है उसको करना, उसमें वो 555 आता है, फिर कभी अलग अलग आता है, डिस्टेंस कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नहीं तो अगली टर्म करें, क्योंकि सब लोग इंटेलिजेंट हो तो फटाफट आ रहा है आप लोगों को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बोलो तीनों चारों जने। No sir, no doubt. No doubts? Okay, good. तो नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्पीड। यहां से अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहां से ही क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड, इनमें दिक्कत आती है, इसको हम 2 क्लास में करके कवर करेंगे। तो अब टर्म लेते हैं हम स्पीड। यस बताइए आप लोग क्या समझते हो, एक एक अर्णव बताओ स्पीड। यस पलक, यस अनमोल, हाँ बताओ पलक, स्पीड आप क्या समझते हैं? फॉर्मूला ही बता दीजिए। Speed is equal to distance upon time. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको फॉर्म में बना दो। अगर इफ वी डिनोट डिस्टेंस बाय d एंड टाइम इज t, स्पीड डिनोटेड बाय s। s will यहां से बन गया डेफिनेशन, the time rate of change of distance, yet distance covered per unit time is known as speed. Distance covered Speed. per unit time. Now tell me what is the unit of SI unit of speed? Meter per second. Meter Yes or no? Meter per second. Meter per per second. second. यहाँ भी दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है और क्यों? Why? If it is scalar तो why, vector तो why? It is scalar because it does not require Time is a scalar because or it does vector not quantity? require direction. Time is a vector or scalar quantity? Scalar. Scalar. Okay, another Time two is chance vector दो. quantity. Time is a Scalar. yes, पहला स्केलर की वेक्टर। Vector quantity. अर्णव सुन लिया आपका, करेक्ट है गलत है अभी बताता हूँ, हाँ. या सही है जो भी। हाँ सोच लो। हाँ पलक क्या होगा? So what time? हाँ स्केलर है या वेक्टर? डायरेक्शन होते ही वेक्टर हो जाती है क्वांटिटी। Yes, the vector quantity. क्यों? Yeah, because it's changing the directions. कैसे डायरेक्शन चेंज होता है? घड़ी की सुई घूमती है, 10 से 11 बजते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो टाइम के डायरेक्शन होते हैं, क्लॉक के डायरेक्शन होते हैं? Clock. हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस द डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ द क्लॉक।
टाइम आप डिजिटल से देखोगे तो डायरेक्शन होता है क्या? टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन होता तो हर जगह अलग अलग आ जाता ना। डिजिटल से देखते हैं तो नहीं है, तो टाइम कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर। वो डायरेक्शन होते हैं क्लॉक की नीडल के। हम कभी नहीं बोलते टाइम वाइज डायरेक्शन, हम क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी। तो हियर बोथ द क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम आल्सो स्केलर, therefore speed is also scalar. क्लियर हो गया? तो अब जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया, तो नेक्स्ट टर्म जब वेलोसिटी बता देंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा डिस्टिंग्विश स्पीड एंड वेलोसिटी. तो अगेन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is known as speed. Its SI unit is meter per second. It is a scalar quantity, right? Now speedometer. All of you, anybody listen the name speedometer? Yes, sir. क्या होता है? Yes, sir. It Sir, in the scooty, the object or the instrument from which we are just seeing the speed, so that is known as इट्स the मेजर speedometer. द स्पीड. ये किसमें होता है? अपनी गाड़ियों में होता है, कार में, मोबाइल में. तो ये हाँ, आपके स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा? तो ये आ गया व्हाट इज स्पीड फ्रॉम व्हिच वी कैन मेजर द स्पीड. तो आंसर हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस फ्रॉम व्हिच वी कैन मेजर द स्पीड. ओके, क्लियर हो गया? नाउ अब मुझे बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड. I use the word instantaneous speed. Like a car is running on a highway and the Yes sir, now instantaneous speed. नहीं मालूम? So simple. लगाओ दिमाग. बताओ. हाँ, instantaneous speed. So the average distance covered in the per unit time. Okay. हाँ, but like a car is running on a highway, one of देखिए so simple. हमें अब अगेन स्पीड की डेफिनेशन नहीं देनी है. इसमें स्पीड तो हमें पता है, is the distance covered per unit time is known as speed. Now instantaneous means at any instant of time. The speed of the object at any instant of the time is known as instantaneous speed. For example, you are sitting in your car and car is running with some speed on the straight road. So you ask to your driver, what is the speed of our car? So at that particular moment, when you ask from the driver and driver give the answer, we are running with the speed of 140 km/h or 120 km. That particular moment, as soon as that moment will change, the speed of the object will change. So at any instant of time, that speed is known as instantaneous speed. Is okay? Then again, most important term. This is most important. जिसको हम डिटेल में कल न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं. एवरेज स्पीड. बताओ अर्णव, आपने तो शायद पहले भी डिस्कस करा है टर्म. फॉर्मूला ही बता दीजिए, यहाँ लगेगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. average speed equals to total distance The total distance upon total distance time. upon total time. जनरली हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द 5 पीपल. तो हम क्या करेंगे? वी ऐड ऑल द एजेस ऑफ द ऑड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस. अब यहाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा. कैसे? अभी देखिए आप. मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं पहले 1 घंटे. ठीक है, आप भीलवाड़ा से दिल्ली की ओर जा रहे हैं. आप फर्स्ट 1 आवर में जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ नेक्स्ट आवर में आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर या आधे घंटे हाफ रनिंग. जैसे यहाँ से गए आप, ए से बी जाना है हमें,
इसका आधा रास्ता तो हमने जो कवर किया किस स्पीड से चल सकते हो क्या 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ डिस्टेंस वी कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो जनरली जब हम अगर एवरेज का कंसेप्ट है तो हम क्या करते हैं 40 और 60 को ऐड कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये करते हैं तो क्या आ जाता है 50। लेकिन ये सही नहीं है मेथड। आप लोगों ने जो बताया वो मेथड लगेगा क्या कि एवरेज स्पीड, अगर मैं स्पीड को ऐसे लिखता हूं तो एवरेज को ऊपर बार लगा देते हैं तो वो एवरेज स्पीड। दिस इज इक्वल टू टोटल Distance upon total time. डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ इस केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या क्या है। यहां से यानी सबसे टफ न्यूमेरिकल वाले वापस 11th क्लास में भी आता है ये क्वेश्चन। ए से बी तक का डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, ना ही मुझे सी तक का मालूम है, लेकिन मैंने ये बोला है कि सी इज द मिड पॉइंट। क्या बोला मैंने सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए से सी तक हम जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड बी से सी तक हम जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो कैसे करेंगे कोई बताओ। बताओ मॉडिफाई करूं। चलो मैं हिंट देता हूं कि ए से बी तक का डिस्टेंस हम कटेंगे डायरेक्ट x किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल रेनिंग हो गया भाई यहाँ पे बारिश। हाँ बताइए कोई कर सकता है। मैंने दे दिया। Sir, time. चलो अभी वैसे तो कुछ और होगा, मैं चलो वो भी आपको हिंट दे, अब चेंज कर दे। तो यहाँ तक 1 आवर मान लो, यहाँ तक 1 आवर मान लो, फिर बता दो। आसान कर दिया मैंने। Sir, distance will be 40 kilometer plus 6 kilometer, and we had covered for in the 1 hour we covered 40 Speak kilometer. loudly, and सुनाई in नहीं आ रहा। आप लोग in शेयर the कर 1 hour we हाँ 1 आवर आपने कहा हिंट दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन वैसे अलग था, लेकिन अभी चलो एक बार ही मान लेते। चलो ये 1 आवर है और ये भी 1 आवर है। चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन मेरा लिख दिया। चलो अब बताओ। ऐसे नहीं होगा, ये 1 आवर वाला नहीं लेना है उनको, अभी ऐसे ही रखो। क्वेश्चन जो मेरा था टाइम नहीं गिवन है। 3x upon 2 divided by total time. यस 3x upon 2 divided. फॉर्मूला है ना टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अब यहाँ पर ना तो हमें डिस्टेंस मालूम है ना टाइम टेकन मालूम है, खाली स्पीड पता है। मैंने कहा था आधा आधा, इसमें कुछ भी नहीं। आप लोग घबरा गए। सो सिंपल, हमें टाइम नहीं मालूम तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे। से इट इज t1 और से इट इज t2. समझ में आए? क्या कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, इसको मिड पॉइंट माना है। तो A to C हमारा डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा बोलो। A to C डिस्टेंस कवर्ड, if total distance is x,
ये तो बहुत सिंपल बात पूछी मैंने अभी, वैल्यू नहीं x आएगी, upon 2 x अपॉन 2 क्या आएगा, x अपॉन 2। अब हम t1 निकाल देंगे। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये इधर आ जाएगा और ये चीज इधर आ जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। speed हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस फ्रॉम ईयर टू ईयर जो अभी अर्णव ने बताया कितना, x/2 किलोमीटर। कितना है, x/2 x/2 किलोमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा d इज x/2 अपॉन स्पीड इज 40, ये आ जाएगा 40 40 किलोमीटर। राइट, और ये x/2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो यहाँ से फाइनली क्या मिल गया हमें, x अपॉन 80। क्या चीज आ गई है, टाइम। कौन सा, 1, यहाँ से यहाँ तक का। अब आप कैलकुलेट करिए t2 टाइम टेकन। तो t2 कैसे आएगा, अब बताओ इसी प्रकार से t2 की वैल्यू सिमिलरली कैलकुलेट करके बताइए। 60 m की स्पीड, x upon 120 x अपॉन 120 120 जैसे हो x गया upon हमारा 120 x अपॉन 120। ये टफ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ये 12th 11th क्लास का क्वेश्चन है वैसे। तो अब मुझे टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट करके बताओ। x upon 120 plus x upon 80 हाँ तो कैलकुलेट करके बताओ, इसीलिए बोला मैंने, ये कैलकुलेट करो एलसीएम लेके टोटल टाइम टेकन। करो भाई, x अपॉन 120 प्लस x अपॉन 80 को आप कैलकुलेट करके बताइए। फाइव एक्स अपॉन 240 तो 5 भी तो कैंसिल करो, तो भाई पूरा सॉल्व करके बोला है। 1 x upon 48 x अपॉन 48। यस पलक आपका, अनमोल आपके, दोनों का एलसीएम ले लो। 240 एलसीएम आ जाएगा, सिंपलीफाई करो और मेरे को बताओ। बहुत सिंपल है भाई। ब्लैक बोर्ड विजिबल है अर्णव, अब तो आज तो दिख रहा है लिखा हुआ सब कुछ हाँ है। मतलब अपन फिर मैथमेटिक्स की क्लास भी कर सकते हैं घर से। तो ये 330 वाला टाइम सही है, रेगुलर फिक्स कर दूं 330 टू 450। ये 4 to 6 10 के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसका पहले आप लोगों को बुला लूंगा। हाँ बताओ भाई पलक, फटाफट क्या कर रहे हो, पढ़ पाओगे यार, बड़े बड़े बच्चों ने कर दिया। 240 Sir, it's not clearly visible. हाँ बेटा, The numbers are not clearly visible. sound or words, letters. I am asking x upon 120 plus x upon 180 इसको सिंप्लीफाई करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। After simplification, what you will get the value of x upon 120 plus x upon 80. So simple now, चलो मैं करता हूँ। अर्णव ने बिल्कुल सही किया था, उसके लिए क्लैप। बाकी दो नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं है इसमें। आप 240 एलसीएम, 240 divided by 120 2 times, this is 2x plus this is 3 times.
सर ये समझाने का क्यों एलसीएम मैथमेटिक्स है और फिजिक्स का था, फिजिक्स का था। तो अभी समझा रहा हूं ना एलसीएम लो, कोई समझा रहा हूं तो एलसीएम तो लो, ये क्या कर रहे हो एलसीएम ले बोल तो रहे, वो तो आता है ना, पूरा सवाल बना दो ना। एलसीएम तो 6 क्लास में वहां पे, तो 240 एलसीएम 2x plus 3x is equal to 5x upon 240. It's become x upon 48. आ गया पलक समझ में? अब तो दिख रहा है 5 4 जा 20 and 5 Yes, is sir. Now x it's upon visible. 48. It's visible now. 40, तो ये आपको कैलकुलेट 148. तो मैंने क्या Yes, था sir. Now देखो अगेन अब मैं शुरू से चलता हूँ। A car is moving from A to B. First half distance it covered with a speed of 40 km per hour. Another half distance covered by with a speed of 60 km per hour. Our aim is to calculate average speed of the motion. So in this case, we know the relation average speed is equal to total distance covered upon total time taken. So now we need to calculate total distance covered. So that is x kilometer. We assume between A and B. So now another thing we need to calculate is time taken. So T1 is x upon 120. T2 is x upon 80. Then total time is sum of these two. We taking 240 LCM, simplified it, we get x upon 80. Any doubt up to this step? किसी को समस्या आता? चले अब आगे चलते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? x अपॉन टोटल टाइम टेकन x upon 80 48 hours. तो x upon 48 hours क्या होगा? x to x कैंसिल, तो 1 upon 48 और 48 1 upon 48. वेरी गुड 1 upon 48. अर्नव 1 upon 48. हैं? सिली मिस्टेक x upon 48. Yes, Palak. Final answer. H to x cancel. 1 upon 48 is wrong. 100% wrong. हाँ 1 upon 48 तो क्या बना? अरे भाई अपॉन में अपॉन है तो ये ऊपर जाता है ना? 48 और यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर। और आपको मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 40 प्लस 60 अपॉन 2 करोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। और इसका आंसर क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। ये आईएएस तक के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। और 50% बच्चे 50 आंसर लिख के आएंगे इसका। क्यों? क्योंकि हमारी जनरली हैबिट है, क्या करते हैं जो दिया हुआ है उनको दोनों को जोड़ दो, कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है, आराम से समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रहेगा क्या आंसर आ गया। एनटीएससी में भी आ सकता है ये 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, अब फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा, अपनी कॉपी में करता हूं। सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, खाली ध्यान से सुनना। ए से बी तक गए, अब ए से बी तक जा रहे हैं किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, वैल्यूज वही लूंगा। ए टू बी हम गए हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब आप उदयपुर से अजमेर आए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। फिर अजमेर से वापस उदयपुर गए आप अपने घर, तो अब के गए आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आए तो 40 से थे, मॉर्निंग में निकले, सिनेरी देखते देखते अब शाम हो गई, घर पे फटाफट पहुंचना है, तो जाते हुए आप तेज गए 60 किलोमीटर। तो ए से बी तक तो हम जा रहे हैं 40 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, और बी से ए जब आ रहे हैं तो हम आ रहे हैं 60 किलोमीटर पर।
सेम वैल्यू ली है मैंने। अब मैं अगेन कह रहा हूं कैलकुलेट एवरेज स्पीड, सेम वे से करना है और आंसर निकालना। ए से बी तक वहां पहले हमने हाफ हाफ डिस्टेंस कर दिया था, अब के मैंने हाफ हाफ डिस्टेंस में करके क्या बोल दिया कि A to B we travel with a speed of 40 km per hour and return back with a speed of 60 km per hour. Calculate the average speed of the traffic. So, then formula average total distance covered up for total time taken. Same method. करिए, बताइए मुझे करके फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा। स्टेप भी बोलते रहो तो सुनाई भी आता रहेगा क्या कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा ना तुम्हारा प्रॉब्लम, चलो तुम्हारी प्रॉब्लम है इसको करना, रिकॉर्ड करना। मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम लैपटॉप रिकॉर्ड करना, मेरा ध्यान किधर है? पूरा तो मेरा हाल में ठीक नहीं था वो बड़ा वाला जो वीडियो है वो उनको अभी तो सेट करके आते हैं और मेरे से वो ले जाओ। कितना भाई तो रोज कर ही नहीं पाएंगे। कैसे कर लोगे रोज का एक जीबी चाहिए तो ऐसा रोज की रोज तो तुम्हें तुम्हारे लिए चाहिए। अरे उनका तो वहाँ स्टोर हो रहा है, तुम्हें चाहिए। हाँ 9th क्लास का लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे। हाँ जी, निकला आंसर? क्यों? कहाँ हिंट चाहिए बोलो, बताओ। पहला स्टेप ही नहीं हुआ। देखो अगेन मैं हिंट दे रहा हूँ सेम। पहले तो बताओ पहले वाला समझ में आया कि नहीं आया? मैं पहले वाला रिपीट करता हूँ। पहले में हम क्या थे, ए से बी उस डिस्टेंस को आपने क्या माना, x किलोमीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो फिक्स तो है ही, क्योंकि पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, उदयपुर से अजमेर डिस्टेंस फिक्स है। फिर हमने कहा था हाफ किलोमीटर मतलब हाफ डिस्टेंस, तो इसको मैंने x/2 कह दिया था, इसको भी x/2 कह दिया था। वो 40 से गए थे और ये 60 से गए थे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाला था t1, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाला था t2, और फिर दोनों टाइम को जोड़ दिया था, ऐड कर लिया, एंड देन फॉर्मूला अप्लाई। सेम वे प्रोसीडिंग, A to B again assume x किलोमीटर। क्या मान लिया? Let us assume the distance between A to B is x किलोमीटर। जब x किलोमीटर है, what is the speed? 40 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम उदयपुर टू अजमेर, ये A to B कैलकुलेट करो। T1 सेम में टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो गया, तीनों चारों बोलो एक साथ, डिस्टेंस कितना है? आप पलक आपने म्यूट कर रखा, आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर, x किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो क्या हो गया टाइम t1? x upon 40, 40 x upon 40, x अपॉन 40। अब आप रिटर्न बैक हो रहे हैं। अब डिस्टेंस का और कितना है वापस? अब अजमेर से उदयपुर जा रहे हो तो वापस डिस्टेंस का और कितना है? अब V2A में चेंज होगा क्या? नो सर। हाँ तो क्या आएगा T2? T2 बताइए। x upon 60, x अपॉन 60। अर्णव क्या हुआ, थक गए क्या? सर समझ में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस आपकी x है, स्पीड आपकी 40 है, तो x अपॉन 40 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ अब रिटर्न बैक में डिस्टेंस कवर्ड अगेन कितना है? डिस्टेंस कवर्ड अगेन x, इसलिए कैसे x x बाय 2, अब तो वापस वही है ना, जितना गए हाँ उतना x ही आ रहे। और स्पीड क्या है? 60 हैं? किलोमीटर पर आवर 60 x किलोमीटर। अपॉन 60। X अब वापस सेम ही तो क्वेश्चन हो गया। यस सर। अब t1 प्लस t2 निकालो, टोटल टाइम टेकन कितना आया बताओ? निकालो भाई अनमोल। t is equal to t1 plus t2। बताइए आंसर, बताइए मुझे, आई नीड आंसर। x by 40 plus x by 60 कितना एलसीएम? x upon 24 एलसीएम बोलो पहले तो। 120 120 120 गुड। अब सर 5x अपॉन 120। वेरी गुड। और नाउ इज रिमेन सेम। x upon फाइनल आंसर नाउ। x अपॉन X upon 24 किलो। तो आप 5 से डिवाइड भी तो कर दो। x upon 24 x अपॉन 24 बिल्कुल सही है। x अपॉन कोई भी पेन नहीं चल रहा, तुम्हारा नहीं आया। हाँ तो उसके आगे करो ना फिर कैल्शियम लेके 43 आप वापस इन करो ना, कैल्शियम डिवाइड करो, सबने कर लिया, आंसर निकाल दिया तो ले लिया, तो आगे तुम करो। तो x अपॉन 24 हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? अब 20। भाई प्रीवियस केस में देखो, वापस थोड़ा चेंज सही, मैं कह रहा हूँ 11th क्लास का क्वेश्चन आपको 9th क्लास में करा रहा हूँ, 11th क्लास की प्रॉब्लम है। टोटल डिस्टेंस 2x पहले कितना था? x x क्यों? पहले देखो हम हाफ गए थे, हाफ ये था तो x हुआ। अब x तो गए और x आए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 2x। कर दो आंसर, 2x। देखो रिमेन 48 आएगा। 48 48 किलोमीटर पर आवर। करो बेटा, हाँ। लो मैं बताऊंगा ना। अरे यार तुम एलसीएम ले ना यार, उसको मेरी नकल नहीं कर रहा, एलसीएम में सॉल्व करो ना, मैंने तो 2 लाइन लिखी नहीं है। मतलब 120 लेके सॉल्व करो ना आगे, उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी डायरेक्ट आंसर लिखा है मान तो लिया 120 लो ना, अब करो तो सॉल्व तो करो। आपको लाइन बताओ ना, इसको सॉल्व करो ना, कैसे बैठे, या तो वो क्या करो मैं सिखाऊं तुम्हें, मतलब कौन सा जोड़ नहीं आता है, फिर पहले वाला कैसे कर लिया? अरे भाई हम ऐसे लेने के बाद क्या करते हैं, हमने वहां 3 लाइन नहीं लिखी है, लगा समझा। 1/2 प्लस 3/4 को जोड़ के बताओ। हाँ जी, क्या आया आंसर आप लोगों के? बोलो। 48 किलोमीटर पर आवर सेम आ गया ना? 48 किलोमीटर पर आवर अलग आ गया? हाँ तो देखो Yes, sir, हमेशा ये 40 याद रखना, कभी भी 50 मत बताना, लेकिन एक केस में 50 होता है, बताओ कौन से केस में होगा? यही स्पीड, सिर्फ एक ही केस होगा। इसी क्वेश्चन को हम 4-5 टाइम्स कर सकते हैं। चलो ये आज के लिए होमवर्क, सोचना किस केस में 50 होगा, बाकी सब केस में 48 आएगा। इसी को आप क्या करो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सेम होमवर्क और दे रहा हूं, क्या करा हमने? 4 इक्वल, चलो वो टफ हो जाए, अभी इतना ही रखो। मैंने 1/2 प्लस 3/4 बोला, x कहाँ है? ठीक है, बंद करें विराज हैं? अब बताओ, पहले कोई भी डाउट हो तो बोलो, यहाँ तक स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे इसको क्लोज करते हैं इस टॉपिक। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाँ, अब अपन कल मैथमेटिक्स की क्लास करेंगे। ठीक, नमस्ते। भूल गए आपको? आप तो भूल गए। वहीं से एक चाटा भी मार
टाटा। और क्या करूं, कोरोना हो रहा है, टाटा। चलो ठीक है। बाय। सर सही चल रहा, विजिबल था आपसे जी, वो भी चल रहा है। मतलब हो जाएगा मेरे हिसाब से क्लास। ठीक है, थैंक यू। चलो तो कल करते हैं, फिर फिक्स टाइम कर ले 3:30 बजे वाला, 32 रेगुलर, फिर पूरा हाँ यस सर 3:30। है, ठीक है। हाँ तो कल का यही रखते हैं, या मॉर्निंग टाइम बताऊं? चलो कल का 3:30 रखते हैं कल को, फिर अपन परसों, सर इवनिंग। ठीक है। कल हम और मैथ भी करते हैं, और आपके को जोड़ लेना। ओके सर टुमारोज टाइम 3:30। 3:30। अगर आप मॉर्निंग टाइम चाहते हैं तो मैं इस बच्चे को मॉर्निंग में बुलाऊं जो यहाँ आता है। एक्चुअली 4:30 to 6, ओके सर, हाँ तो सर मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग 11 के आसपास कर सकते हैं। बताओ 11 to 12:30। यस सर 11 to 12:30। कोई क्लास तो नहीं Yes. है तुम्हारी? नहीं है ना? नहीं। तो 11 to 12:30, ठीक है। 5-1 मिनट का वो रहता है, तो आप लोग मेरे कॉल कर लेना, इस वाले नंबर पे पूछ लेना, मैं कल भेजता हूँ। तो 11 to 12:30। बाय बाय। बाय। ऐसे कर। समझ में? तुम्हें बेटा वो एडमिट आ जाए तो किसकी बारी पूछना चाहिए था, किसने क्वेश्चन नहीं? तुमने एग्जाम देने वाला सर इस वाले में टिमोथी को आया था। सर आपने जो अरे बेटा हमने डायरेक्ट स्टेप लिखे हैं, वो कैलकुलेशन 4th क्लास का है, उसको कोई टीचर सॉल्व नहीं करता है। उन दोनों बच्चों ने कर लिया, आपने ही बोल दिया मैं एक डायरेक्ट स्टेप है। आप इन सबको छोड़ो, इसलिए आपको वापस भर दिया है, इसको छोड़ूंगा, बताओ सर एलसीएम 4 आ रहा है। आप उससे आगे बोलो तो सही, क्या करते हैं, मेथड ही तो आना चाहिए ना, वो मुझे बताओ ना।